नमस्कार। मैं कथक नृत्यांगना नलिनी कमलनी में से नलिनी। हमारी संस्था संगीतिका गुरु जितेंद्र महाराज जी के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से लगभग 50 वर्षों से शास्त्रीय नृत्य संगीत को एक प्रोत्साहन दे रही है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छी तरीके से एक नृत्य शिक्षा में प्रशिक्षण दे रही है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। और जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जो अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं अलग अलग विधाओं में, उनको एक मंच देकर उसका एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें सभी कलाकार अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का प्रदर्शन कर और एक समाज को अपनी कला से परिचय देते हैं किसी न किसी थीम में। आज़ादी का अमृत महोत्सव है इस वर्ष 2021 और 22 में, तो इसी के अंतर्गत हमारी संस्था संगीतिका आगामी सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित कर रही है 2 दिवसीय, जिसमें अलग अलग विधाओं के शास्त्रीय नृत्य के अलग विधाओं के कलाकार भाग ले रहे हैं और वो चीज़ें उसका जो शीर्षक है संरचना है जिसमें कंपोजिशंस हैं और कोशिश करी है कि वो अलग अलग थीम्स में हो जिससे लोगों को अच्छा लगे और आगे जो बच्चे हैं सीख रहे हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिले। तो मैं इसकी शुभकामनाओं के लिए आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है और इसकी सफलता के लिए मैं कामना करती हूँ ईश्वर हमें राह दिखाएगा। नमस्कार। Om Mangalam Bhava. Sangeetika Institute of Performing Arts has done yeoman service to the propagation of Kathak all over India, especially in the Hindi hinterland. Under the able guidance of Guru, renowned reputed maestro of Kathak, Pandit Guruji Jitendra Maharaj Ji of Banaras Gharana, we invoke the memory of Dada Guru Kishan Kumar Ji and the pantheon of all those who have made this form go far and wide. But most importantly, his 8 disciples, the 2 sisters, popularly called as Delhi sisters, Kamlini Ji and Nalini Ji, have taken this art forward worldwide. We are very happy on the occasion of Amrit Mahotsava. In April, in Delhi, they are mounting a festival which will include all art forms and thus take Indian classical dance forms further. I can only wish them much success, many more years of dancing feet and training young India. Mangalam Bhava. I am Tapati Chaudhary, a freelance dance writer. Sangeetika is an institute of performing arts. It has been a pioneer institute in many ways, where training is imparted under the Guru Shishya Parampara, under the able guidance of Guru Jitendra Maharaj. He has been promoting and popularizing Kathak dance for the last 5 decades. In the month of March, Sangeetika is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav with sanrachana or choreographic works of different styles of Indian classical dances by featuring famous and eminent artists. I wish them all good luck. नमस्कार। नलिनी जी कमलिनी जी। संगीतिका को 50 साल के ऊपर हो गए, मैं आपको मन से बधाई देती हूँ। मुझे मालूम है इतने साल एक दिल से काम करना कोई आसान चीज़ नहीं। गुरु जी को प्रणाम। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सेलिब्रेट कर रहे, उसमें मुझे भी शरीक होने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ। इस आपके फेस्टिवल के लिए मैंने कृष्ण लिबरेटर ये कोरियोग्राफी चुनी है। कृष्ण ने भी सभी को मुक्ति दिलाई, फ्रीडम दिलाया, आज़ादी दिलाई, कभी प्रदूषण से, कभी रूढ़ियों से, तो कभी कंस के दुष्ट व्यवहार से। इस महोत्सव को मन से बधाई देती हूँ। Namaskaram. I am Jaiprabha Menon, Mohiniyattam practitioner from New Delhi. Sangeeta Center for Performing Arts is a pioneer training center imparting training in Kathak by Guru Jitendra Maharaj Ji. The center has been promoting and propagating
Kathak and young dancers through various events. I am happy to be part of the festival called Nritya Rajana, celebrating Azadi Ki Amrit Mahotsav by the Sangeetika Performing Center. I take this opportunity to thank the Gurus, Nalini Kamalni ji, for this wonderful opportunity for International Academy of Mohiniyattam. Thank you. Come with me through Prerna to immortality, to passionate belief in our motherland, to a town where a woman lost a husband when she was younger than me or you. She was married to the king, and when he died, she was proclaimed the Rani of Jhansi. She was a great queen. She ruled with efficiency, strength, and very feminine wisdom. Let's go back to a time we have almost forgotten. Here rides the fearsome Maharaja Mardan Singh. And here comes Tantia Tope in all his splendor. And here comes the Rani of Jhansi. This is the awesome revolt of 1857. The British attacked her city, occupied her fort. She escaped to Kalpi. And with the soldiers of Tantia Tope, they captured the famous Gwalior fort. Come with me to the bloodshed of a famous battlefield. Come, celebrate and mourn the death of a warrior queen, dead at the age of 23. Come now with me to Bundelkhand, a region that loves to write about this noble queen. Watch and listen as Subhadra Kumari Chauhan writes a poem celebrating our love, India's love, for this, her bravest child.
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। मेरे हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की, मेरे
मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी थी सिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी दिखा गई पथ सिखा गई दिखा गई पथ सिखा गई यशोधरा 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 सुनो सुनो सुनाते हैं तुमको एक कहानी, देखी न हो सुनी न हो, सुन लो मेरी बानी, सुन लो मेरी बानी। कपिल वस्तु महाराजा शुद्धोधन का पुत्र बुद्ध देव अवतार हुआ। सिद्धार्थ नाम के इस बालक में विलक्षण प्रतिभा का आभास हुआ। सांसारिक बंधन में बंधने को यशोधरा से विवाह हुआ। राग रंग आमोद प्रमोद बीच भी मन सिद्धार्थ का वैराग हुआ। मन सिद्धार्थ का वैराग हुआ। वैराग हुआ, वैराग हुआ।
जगाए सजन घर आए सजन घर आए भैया पकड़ मोरी भैया पकड़ मोरी निपटनी भैया पकड़ मोरी भैया पकड़ मोरी निपटनी घर लगन नाई अवसर जगाए सजन घर आए सजन घर आए भ्रमण करते हुए हुआ हादसा एक दिन। देखी उन्होंने रुग्ण वृद्ध और मृत काया। जीवन की इस गति पर गौतम का मन भर आया, किंतु देख तेजस्व सन्यासी मन में मुक्ति भाव समाया। सिद्धि पाने चले सिद्धार्थ, तज राजपाठ मोह माया। तज राजपाठ मोह माया, तज राजपाठ मोह माया। देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, क्या हो जाएगी ऐसी ही,
क्या हो जाएगी ऐसी ही मेरी यशोधरा? हाय हाय, मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा भरा, जो है आज हरा भरा। आज्ञा लूं या दूं अकाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे राम, हे राम, तुम्हारा वंश जात, सिद्धार्थ तुम्हारी भांति तात, घर छोड़ चला ये आज रात, घर छोड़ चला ये आज रात। आशीष आशीष उसे दो, लो प्रणाम, आशीष उसे दो, लो प्रणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, ओ क्षण भंगुर भव राम। नाथ वियोग में व्याकुल यशोधरा ने आंसू बहाए। मेरी क्या गलती थी हाय, स्वामी की निष्ठुरता किस किस को बतलाए। कभी अली कभी सखी कभी अपने को समझाए। उसकी क्या त्रुटि थी बिन बतलाए, त्याग गए वे हाय, त्याग गए वे हाय, त्याग गए वे हाय। चुप रह चुप। हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे? तुझे देख पाते हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता? अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रह चुप। हाय अभागे, हाय अभागे। सखी, वे कहाँ गए? मेरा बायां नयन फड़कता है, पर मैं कैसे मानूं? देख, ये हृदय धड़कता है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी, वे मुझसे कह कर जाते, मुझसे कह कर जाते।
मुझसे कह कर जाते, वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, क्षत्रिय धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रही स्मरण वो आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, वे मुझसे कह कर
समय बीता आज कल करते, समझाए कौन राहुल के मन को। प्रश्न करता है मां से, कहां चले गए तात, देखा ना उनको तब से। माँ को रोता देख करता है मनमानी, हट करता है सुनने को तात की करुणा भरी कहानी। माँ, तात कब आएंगे? माँ, कहो ना, तात कब आएंगे? कब आएंगे तात माँ, बताओ ना। माँ, विहग समान पंख यति पाता में, घूमता मैं गगन में, देख लेता पिता बैठे किस वन में। कहते तू कौन है, तो नाम बतलाता मैं, और मार्ग दिखा सीधा घर ले आता मैं। किंतु बिन पंख विचार सब रीते हैं, हाय हम पक्षियों से भी गए बीते हैं। माँ, तुम भी एक कहानी सुनाओ ना, सुनाओ ना एक कहानी माँ। मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी
गाते थे घर कल कल स्वर से। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर घर शर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। माँ कहे एक कहानी। राजा था या रानी। इतने में आखेटक आया, मांगा उसने आहत पक्षी। तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बढ़ चली कहानी। माँ कहे एक कहानी। राजा था या रानी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। माँ मेरी क्या बानी। मैं सुन रहा कहानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ कहे एक कहानी। राजा था या रानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। माँ कहे एक कहानी। राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। राजा था या रानी। आओ ओ वनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे। मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वो मेरा विश्वासी। आओ अब आप ही जाओ ओ बनवासी, ओ बनवासी। मुझको सोता छोड़ गए, पीठ फिर मुंह मोड़ गए हो। तुम ही जोड़कर तोड़ गए हो, साधु विराग विलासी। आओ अब आप ही जाओ ओ वनवासी, ओ वनवासी। जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। अब तो आओ आप ही जाओ
ओ वनवासी, ओ वनवासी।
यशोधरा ने अनेकों वर्षों तक अपने प्रियतम की राह तकी और आज सिद्धार्थ पधार रहे हैं, अपने ही राज्य में पधार रहे हैं, पर वो भी भिक्षु बनके, भिक्षु के रूप में। माँ तात आ रहे हैं। माँ तुमने सुना? तात आ रहे हैं। मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है। फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा मेरी भी थी क्या विकृत विकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। जाओ नाथ, अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्त तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो, सहूं मैं भरसक, देखूं बस है दानी। कहाँ तुम्हारी गुणगाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, अब है मेरी बारी। पधारो भव भव के भगवान, मैं पद पद्मों पर ही वारी। चरणामृत करके ये खारी, अश्रु करूं अब पान। पधारो भव भव के भगवान, पधारो भव भव के भगवान। रे मन, आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूं मैं तुझसे, बात ना बिगड़े मेरी। शेष की पूर्ति यही क्या आज, भिक्षु बन लौटे हैं कपिल नगर नरराज। स्वयं दान दे सकते जो, मांगे वे यूं भी। राहुल को देने आए हो, आज कौन सी सीख। दीन ना हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी। भूत दया मूर्ति वह मन से, शरीर से। क्षीण हुआ वन में क्षुधा से मैं विशेष जब, मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से। आया जब मार मुझे मारने को वार वार, अप्सरा अनिकीनी सजाए हेम हीर से। तुम तो यहां थी, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहां। जूझा मुझे पीछे कर पंचशर वीर से। दीन ना हो गोपी, सुनो, हीन नहीं नारी कभी। सुना था कलकंडी से कहीं मैंने मन का यह मंत्र, तने पर इतना जो टूटे नहीं, तंत्री तेरा वह तंत्र। बतलाऊं मैं क्या अधिक तुम्हें तुम्हारा कर्म, पाला है तुमने जिसे, वही वधू का धर्म, वही वधू का धर्म। कृत कृत हुई गोपा, पाया ये योग भोग। आ राहुल, पूज्य पिता से परंपरा पातू। तात निज शील सिखलाओ मुझे, इन पदों में मार्ग दिखलाओ मुझे।
असत से सत में, तिमिर से ज्योति में लाओ मुझे, मृत्यु से तुम अमृत में, हे पूज्य पहुंचाओ मुझे, पहुंचाओ मुझे। मैं भी कृतकृत्य आज वीरवत्स आ तुम, स्वाधिकार भागी बन भूरी भूरी भातु, सत्य प्रकाश और अमृत एक साथ पातु। बुद्ध शरण, धर्म शरण, संघ शरण जातु, संघ शरण जातु। तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी? था अनुरूप रूप एक राहुल ही, सदा रहे अनुगामी, सदा रहे अनुगामी, सदा रहे अनुगामी। मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं मैं हामी? मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं मैं हामी? बुद्धं शरणं, धर्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि, गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, 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 गच्छामि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्माण, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक व्याधि। प्राणी मात्र जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। ये वह अवस्था है जिसमें अनंत शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य आवागमन के चक्र से विमुक्त हो अलौकिक शक्ति में एकाग्र हो जाता है।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे कृष्ण ने कालिया दमन करके गोकुल में फैले हुए जमुना के प्रदूषण का निवारण किया। पूरा गोकुल, बच्चे बूढ़े फिर से खुशहाल हो गए। सूखे पत्ते हरे भरे हो गए। सिकुड़े हुए मोर फिर से नाचने लगे। सिमटे हुए पंछी आकाश में फिर से उड़ान भरने लगे और मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे।
पर निरकत बनवारी पम 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 पग पटकत भम 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 फनन चारी बिम 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 बिनति करत नागवधू आरी सन 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 सनकादिक नन्नन नन्नारदारी गम 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 गंधर्व सभी देवतानि सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 किनमुजानि चन 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 चरण भरत अभय भयोकानि नादि बिना 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 माखन चुराने वाले कन्हैया क्या असल में दही माखन के लालच थे? नंद राजा के घर में भला उन्हें क्या कमी हो सकती थी? परंतु बात ऐसी थी कि गांव का सब दही माखन जाता था मथुरा और गांव के बच्चे गौए बछड़े भूखे प्यासे ही रह जाते थे। मजबूर लाचार प्रजा को शोषण से बचाने के लिए कृष्ण को बनना पड़ा माखन चोर। प्रात चली दधि बेचन को घन घोर घटा मटकी सर भारी चली दधि बेचन को घन घोर घटा मटकी सर भारी ग्वाल अचानक आन मिले मगर रोकत ठाड़ रहे बनवारी वो पूछत है दधि दे दो हमें नाही कहे सब गोप कुमारी। चली दधि बेचन को घन घोर घटा मटकी सर भारी ग्वाल अचानक आन मिले मगर रोकत ठाड़ रहे बनवारी वो पूछत है दधि दे दो हमें नाही कहे सब गोप कुमारी। कर चौपट ग्वालन की मटकी सब ठाड़ रहे उन फोड़ हिडारी उन फोड़ हिडारी उन फोड़ हिडारी।
इंद्र कुछ ज्यादा ही गर्विष्ठ हो गए थे। उनका गर्व हरण करने के लिए कृष्ण ने गोकुल की प्रजा से कहा, गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इंद्र की पूजा छोड़ हमें तो गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए।
कंस एक जुल्मी, दुष्ट, स्वार्थी राजा थे। जब कंस का बुलावा आ गया तो अक्रूर के साथ कृष्ण चल दिए मथुरा। पहले कुवलिया पीड़ हाथी के रूप में आए राक्षस को उन्होंने छिन्न विच्छिन्न कर दिया। फिर सिंहासन पे विराजमान उद्दाम कंस को भी। सभी प्रजाजनों को निर्दयी कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और कहा, अगर अत्याचार करने वाला दोषी है तो उतना ही अत्याचार सहने वाला भी। हे उद्धव, आप तो आसानी से कह सकते हैं कि हमें कृष्ण को भूलकर अपनी अपनी राह चलना चाहिए, पर क्या आपको मालूम नहीं कि आत्मा परमात्मा लोक परलोक की बातें हमें कृष्ण ने ही समझाई थी। तभी तो सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाने के लिए हमने अपनी लाज शर्म छोड़कर अपने आप को कृष्ण समर्पित किया था।
मुसले प्रमुखाः गायन्ति गोप्यो जनतानुरागा। समूह